लेकिन सबने काफ़ी सपोर्ट किया क्योंकि हॉस्पिटल बन रहा था और उस तरीके से हमने वो पूरा हॉस्पिटल 2 महीने में बना के तैयार किया। उस समय भी कोविड में इस्तेमाल हुआ, फिर रेगुलर हॉस्पिटल की तरह इस्तेमाल हुआ एंड ऑफ द ईयर जब कोविड थोड़ा कम हो गया और अब इस साल इस समय सेकंड वेव में 100% कोविड पेशेंट से ऑक्यूपाइड है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता। वेलकम टू इंडिया नॉलेज नेटवर्क। नॉर्थ इंडिया में हर साल पराली यानी स्टबल जलाने के कारण पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। लेकिन 29 साल की एक सिविल इंजीनियर जो यूएस बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म छोड़ के अपने ही शहर गोरखपुर में आके उन्होंने एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे हम ये पराली बचाकर उन्होंने कोविड हॉस्पिटल भी बनाया और बहुत और भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। तो चलिए हम वेलकम करते हैं श्रुति पांडे का। Yeah, welcome to India Knowledge Network, ma'am. And very, very congratulations that you have figured on Forbes 30 under 30 Achievers 2021. So how all that happened और कैसे सब कुछ हुआ, please tell me. और कैसे लग रहा है आपको? Thank you. Of course, it feels great. So I came to know about it on 21st April, around morning 8 a.m. So you don't get to know early. You only get to know when you're selected to be one of the honorees. So it was a great feeling. It was a great surprise because we have no idea. So it feels it's more like a shock for a minute. But then yeah, so I immediately of course shared it with my family, friends, people we work with, our partners. And yeah, since then it's been great and it's given us a great visibility for our work, which we've been doing for 3 years. So definitely feels good. And we all are so proud of you. Actually, it's a proud moment for all of us. Thank Okay, so you. tell us about your childhood and where you born and brought up. I am born and brought up in Gorakhpur in UP, which is a small, I would say like a small city. It is now more famous uh, because our chief minister is from there, but otherwise it's a small district. And I did my schooling in Gorakhpur till 10th standard. And then I went to Delhi to do my 11th and 12th from DPS. I'm one of the three triplets, so I had a very interesting childhood. Growing up with two more siblings, going to the same class, doing everything together, and we've been raised very, I would say, very comfortably. So that way, I've been privileged to be raised in a, middle class family which had most things taken care of, and our parents never stopped us from doing anything. Like they made sure that each one of us have our own individual personality. So whatever we wanted to study, play with, they took care separately. Not like एक जो कर रहा है तो दूसरे भी वही करेंगे. They never did that, and that really helped us to be confident later in life. And so for me, I think it was only after I went to college was the first time I got separated from my family because I then had to figure things out alone without my siblings, which took us a while because we were very close and connected. And that is where I first made, I think, my first independent decision, which is to be an engineer and study civil engineering. Um, and that was an interesting decision at that point of time. And my parents were extremely supportive. Then also, especially my father, he told me I can do civil, mechanical, whatever I want. I don't have to study IT, computer science mostly. And that really helped me to, take that decision and then later for masters or to quit my job. So every further decision became easy because they were very supportive. So I've been very lucky that way with my parents in childhood. Okay, so as you told us कि your triplets. So मैम लड़ाइयाँ भी बहुत होती होगी because तीनों एक Yes, जैसे हो गए, and in same definitely, school and everything same, definitely. everything same. So वो लड़ाइयाँ कैसी होती थी और कैसे सब कुछ होता था, वो उसके बारे में कुछ प्लीज बताइए। नहीं, आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर जैसे हर सिबलिंग में होता है ना, हर छोटी छोटी चीज पे। और बिकॉज आप तीन है तो हर चीज शेयर करने पे भी लड़ाई होती है। एंड माय मदर ऑलवेज ट्राई टू इंस्टिल लाइक the behavior to share. So like she would not get 3 chocolates, she'll only get 1 chocolate and tell us to share that 1 chocolate. So that we get used to sharing things. And then you will fight ki, who gets the bigger piece, who gets the smaller piece. So that was a very fun childhood, or definitely difficult for parents, I'm sure. Taking care of 3 kids. For us, it was a lot of fun, Actually, for sure.
Yeah, because if you're playing any indoor games, for instance, you usually have 2 to 4. हर game पे लिखा होता है 2 to 4 players when you're a kid. Hmm. So in our case, we didn't have to look for the fourth person. Three of us could play any game together. So it was like a great team growing up together. Yeah, that's wonderful. And so चाइल्डहुड में एग्जैक्टली आपको क्या लगता था कि हमेशा हर ड्रीम होता है कि चाइल्डहुड में कुछ और ड्रीम होता है, लेकिन बड़े होके जब हम Mm-hmm. कॉलेजेस में आते हैं तो दैट चेंज. Right, सो right. चाइल्डहुड में ऐसा क्या ड्रीम था कि जो आप देखना चाहते थे? So I was actually always very interested in reading in general, out books, academics. So I thought for the longest time, even till 12th, I'll be a teacher. I have always loved, the art of teaching, education. So I always thought I'll do my master's, do my PhD, and teach probably a humanities subject actually. So I always thought I might want to teach economics or something. But then 12th ke baad, I didn't study economics. I went to do my civil engineering. So then things changed from there. And now I'm doing other things. But I think even now in future, if I get an opportunity, I would definitely like to be able to teach, learn how to teach and then teach something for sure. Yeah. दैट्स ब्यूटीफुल. सो मैम कंस्ट्रक्शन में आने का क्या इंस्पिरेशन था? कहाँ से आपको ऐसा वो इंस्पिरेशन मिला कि आपको सिविल में ही जाना है, सिविल इंजीनियरिंग में ही जाना है? इंस्पिरेशन तो मैं नहीं कहूँगी, बट मेरे को हमेशा ये लगता था जब मैं स्कूल में भी पढ़ती थी, मुझे हमेशा वो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगते थे जो फिजिकल होते थे, प्रैक्टिकल. तो फॉर एग्जांपल मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री से हमेशा ज़्यादा पसंद था, क्योंकि मुझे लगता था फिजिक्स में आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली लॉ को समझ सकते हैं. केमिस्ट्री में देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, मेमोराइज. तो दैट वे जब मेरे को इंजीनियरिंग में चॉइस लेना था सब्जेक्ट का, सेम लॉजिक अप्लाइड की. सिविल और मैकेनिकल इज अ वेरी प्रैक्टिकल कोर ब्रांच. यू कैन सी अ बिल्डिंग बीइंग बिल्ट अगर आप उसको पढ़ते हो क्लास में. आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. मैकेनिकल में भी सब कुछ टैंजिबल होता है, हाथ से कर सकते हैं, मशीन बनाना, ऑटोमोबाइल. तो मुझे वो एस्पेक्ट कंप्यूटर पे बैठ के काम करने से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि मुझे लगेगा. दैट्स वाई जब मैं इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रही थी इस सब्जेक्ट्स के लिए, तो मैंने सिर्फ सिविल और मैकेनिकल अपनी चॉइस डाली. मैंने और कोई ब्रांच अपनी चॉइस डाली नहीं थी काउंसलिंग में. So I knew कि either civil होगा या mechanical, and I got civil. So at that time I wasn't sure कि civil, but I knew कि इन्हीं दोनों में से मुझे कोई core branch पढ़ने का मन था for sure. Yeah. So after completing your master's construction management, okay, in the US, and you were working in a consultancy firm there in US. Yeah. And so what exactly came to your mind? Why you quit your job and you came to India just for the startup? Mm-hmm. So actually, so जॉब से पहले एक्चुअली मैंने 3 महीने इंटर्नशिप की थी यूएस में, विच वाज मोर इंटरेस्टिंग देन द जॉब. और मुझे लगा इंटर्नशिप जैसी जॉब होगी, पर ऐसा हुआ नहीं. तो इन इंटर्नशिप आई वाज वर्किंग विद अ जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो सबवे स्टेशन, जो हमारे वहाँ दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे वो काम करती थी, वो कॉन्ट्रैक्टिंग टीम. और हम लोग जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो पहले जिस पे अटैक हुआ था, जो नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना, उसके नीचे का जो पूरे सबवे स्टेशन था, वो उसका कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे. तो वो 3 महीने आई फेल्ट वेरी इंटरेस्टेड. हम अंडरग्राउंड जाते थे, हम वहाँ पे काम करते थे, साइट सर्वे करते थे, कैलकुलेशन. तो आई थॉट मेरी फुल टाइम जॉब भी ऐसी होगी. बट फुल टाइम जॉब वाज इन अ कंसल्टेंसी विच वाज नाइस. बट लाइक तो मुझे साइट का भी एक्सपीरियंस हुआ, और फिर वहाँ पे मैंने प्रॉपर जो मैनेजमेंट वाला काम होता है प्रोजेक्ट का, कि बजट और टाइम, ये दो चीज ही कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट होती है. कि ये प्रोजेक्ट का नहीं डिले होना चाहिए, ना जल्दी समय पे खत्म होना चाहिए, और बजट एक्सीड नहीं होना चाहिए. तो मैंने 10 महीने वहाँ पे कंसल्टेंसी में काम किया, जो ऐसे जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती थी ताकि वो अपना बजट एक्सीड ना करें. तो हम हर हफ्ते उनका वीकली रिपोर्ट लेते थे कि ये अब तक बन जाना चाहिए था, यहाँ पे कॉस्ट हम कहाँ पे कंट्रोल कर सकते. तो लर्निंग बहुत हुई, बट आफ्टर अ व्हाइल इट बिकेम रेपिटेटिव फॉर मी पर्सनली. एंड मेरे को हमेशा आई गेट बोर्ड टू इजली. तो जब रेपिटेटिव काम होने लगा तो आई वाज लूजिंग माय इंटरेस्ट. तो उस समय मैंने स्टार्टअप का नहीं सोचा था. आई जस्ट थॉट आई वांट टू चेंज. एंड कोइंसिडेंटली आई केम टू नो अबाउट द रूरल फेलोशिप, which is State Bank of India Youth for India. It's now 10 years of this fellowship in India. जब मैंने अप्लाई किया था, that was the 5th or the 6th year for it in 2016. तो तब मुझे पता चला कि इंडिया में एक ऐसी फेलोशिप होती है which you can be for 1 year in a village and do whatever you want with the community. तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा कि अलग है. That time I didn't plan much, to be honest. I thought I had my H1B. So I thought I'll take a break, quit my job, go back to India, do the fellowship for a year. And if after that
I don't know what to do in India. I'll come back to the US and find another job, or ask my same boss to give me the job, which he was at that point interested to. So तब तक का मेरा यही plan था actually 2016 में when I was coming back to India. I didn't thought I would stay back for this long, and but then the fellowship happened, and when the fellowship happened, that's when I came to know about ground reality of the stubble burning problem. तब तक मैंने भी like anyone, I had read it in the news around Diwali. You see in Delhi they keep talking about it, but I was very surprised कि हमने दिल्ली में पढ़ा होता है, लेकिन वहां पे मध्य प्रदेश में they were burning straw, and this was not paddy straw, this was wheat straw and soybean का waste. And when I did a bit of my own research, I realized कि पैन इंडिया ऑलमोस्ट हर तरीके का जो फाइब्रस बाय प्रोडक्ट है, चाहे कॉटन का हो, कोकोनट हो, वीट हो, पैडी, शुगर केन, हर का जो बाय प्रोडक्ट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और मोस्टली उसको जलाते हैं. जस्ट दैट कि दिल्ली क्योंकि लैंडलॉक्ड है, दिल्ली में पहले से ही पोल्यूशन इतना है, तो वहां का एयर पोल्यूशन और एग्रीवेट हो जाता है. तो न्यूज में ज्यादा हमें पता है, पर ऐसे हर जगह ये हो रहा है, और इवेंचुअली कुछ साल में हर जगह ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम इतनी ही बढ़ सकती है. तो देन लुकिंग एट द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम इंटरेस्टेड मी कि मतलब ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है एक स्टेट पंजाब की या हरियाणा की, पैन इंडिया ये प्रॉब्लम है, इवन ग्लोबली ये प्रॉब्लम है. वियतनाम, थाईलैंड, यूएस, चाइना, हर जगह जहां भी वीट, पैडी, कॉर्न जैसे क्रॉप होते हैं स्टेबल, वहां बर्निंग होती है. तो देन आई रियलाइज कि ठीक है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू. And then my construction, so I didn't plan it, but then my construction background made me realize कि we can convert this raw material into a building material. Because अगर आप 100 साल पहले देखें तो जितने कच्चे घर होते थे वो हमेशा भूसे के, पुआल के और मिट्टी के बने होते थे, और वो घर हमेशा ज्यादा ठंडे होते थे हमारे ईंट के घरों से. एंड सिमिलरली यूरोप में भी वहां पे इस तरीके से नहीं, वहां पे उसको स्ट्रॉ बेल होम कहते हैं, पर वहां भी वो पहले क्या करते थे, स्ट्रॉ को कंप्रेस करके लूजली ऐसे बेल के फॉर्म में कर लेते थे, 9-9, 10-10 इंच के चौड़े प्रेस करके स्क्वायर शेप में, और उससे वो दीवार के अंदर इंसुलेशन करते थे, क्योंकि उन कंट्रीज में ठंडी बहुत पड़ती है, और उस स्ट्रॉ से उनके जो घर होते थे वो गर्म रहते थे. तो आई रियलाइज कि ये स्ट्रॉ की वैल्यू हमेशा से कंस्ट्रक्शन में रही है. जस्ट दैट कि जब सीमेंट और नए तरीके के मटेरियल आ गए, पीपल स्टॉप्ड यूजिंग इट. So then I realized there is potential, and we found a way to compress this more, as much as possible, ताकि हम इसको, जैसे आपका प्लाई होता है जितना थिक और डेंस होता है जो वुड का प्लाई, जिससे हम फर्नीचर और पार्टीशन बनाते हैं, तो हमने उस डेंसिटी तक इस पैनल को बनाया. और अब ये जो पैनल है ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, आपका घर में दीवार में पार्टीशन, फॉल सीलिंग, फर्नीचर, फ्लोर, आप हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ये इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ग्रेड में आता है. तो फेलोशिप से मेरे को ये आइडिया आया और स्टार्ट हुआ. तो जब मैं यूएस में थी तब ऐसा कोई प्लान नहीं था. आई थॉट आई गो बैक, बट देन इट स्टार्टेड. इवन देन आई थॉट कि 1-2 साल में भी एज अ प्रोजेक्ट आई डू इट. आई डोंट थिंक इट विल स्केल अप, but of course thankfully it did. So now it's a full-time thing I've been doing for last 3 years, since June 2018. Yeah, and now you're founder of Structure Eco. Yeah. So what is it? Tell us about this. So now Structure Eco is a full-fledged, private limited company that manufactures building material out of agri waste. So we compress this agri waste into a panel, which is similar to ply, gypsum, cement board. It is water, fire, termite proof. और आपके इंटीरियर में घर में जितनी भी चीजें हैं उसको ये मटेरियल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. यानी ब्रिक की जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दीवार बनाने में, जिप्सम की जगह आप फॉल सीलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाई की जगह आप इससे दरवाजा बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं. तो ऑलमोस्ट हर तरीके की एप्लीकेशन को ये मटेरियल अलग अलग शेप और साइज में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और हम जून 2018 से ये काम कर रहे हैं, और पिछले 2 साल में जनवरी 2019 से पिछले साल तक हमने लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन इससे किया है इंडिया में, अलग अलग शहरों में, 10 शहरों में, जो अलग अलग स्टेट में है, अलग वेदर है वहाँ. तो हमने गर्मी में भी किया है, हमने बीकानेर जैसे जगह पे भी किया है, और उड़ीसा में भुज में जहाँ अर्थक्वेक आता है, हर तरीके के ज्योग्राफी में हमने इस मटेरियल का इस्तेमाल किया है. और हमारी कंपनी में आर्किटेक्ट, डिजाइनर, फैक्ट्री पूरा सेटअप है, जहाँ हम पहले मटेरियल बनाते हैं, फिर उससे हमारी टीम जाके कंस्ट्रक्शन करती है. But ma'am, you could have started this in a big city. Say,
बिग सिटी में भी आप कर सकते थे, बट यू चोज अ स्मॉल लाइक गोरखपुर, अ स्मॉल प्लेस. सो व्हाट इज बिहाइंड दिस? मेरे हिसाब से जब कोई भी अपनी कंपनी स्टार्ट करता है तो इनिशियली आपके पास बहुत फंडिंग नहीं होती है, रिसोर्सेज कम होते हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट केस ये है कि आपको हमेशा उस ज्योग्राफी से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ सपोर्ट हो। तो मेरे लिए ऑफ कोर्स बिकॉज माय फैमिली इज फ्रॉम गोरखपुर, तो वहाँ पे जैसे कि इनिशियली मुझे ऑफिस लेने की जगह नहीं लेनी पड़ी रेंट पे। मैंने अपने फैमिली की स्पेस यूज की ऑफिस के लिए। हमने अपनी जमीन पे पहला मॉकअप पायलट किया। तो आपको काफी इनफॉर्मल नॉन टैंजिबल सपोर्ट जो अपने जगह से मिल सकता है जहाँ से आप हैं, वो बेटर होता है। और एक प्लस पॉइंट अब ये है कि शुरू में स्टार्टअप हमेशा से बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई से स्टार्ट होते थे। पर अब अगर आप देखें तो इंडिया में काफी स्टार्टअप टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज में, और कंज्यूमर हर जगह अवेयर है। तो जो कंज्यूमर दिल्ली में मेरा ये मटेरियल खरीद सकता है वो गोरखपुर में भी खरीद सकता है, क्योंकि अब इंटरनेट पे सबके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन है। तो अब मेरे हिसाब से छोटे शहर से शुरू करना इज नॉट अ डिसएडवांटेज, एक्चुअली इट्स एन एडवांटेज, क्योंकि आपकी काफी ऑपरेशनल कॉस्ट इनिशियली कम होती है। अगर गोरखपुर में मुझे एक ऑफिस, जैसे हमारा जो गोरखपुर में ऑफिस है, वो हमें अगर 20,000 रुपये रेंट पे मिला, दिल्ली में मुझे उतने ही बड़े एरिया का रेंट कम से कम 40,000 देना पड़ेगा, 50,000। तो इनिशियली जब रिसोर्सेज कम है तो इट्स बेटर कि आप छोटे शहर से स्टार्ट करो। अब हम दिल्ली में भी हमारा ऑफिस है, गोरखपुर में भी है, तो फिर आप एक्सपैंड कहीं भी कर सकते हो। पर मेरा मानना है जहाँ से आपको, इन माई केस आई हैपन टू बी फ्रॉम गोरखपुर, तो वहां से स्टार्ट करना हमेशा बेटर रहता है। तो पूरा एक साल 2019 आई वॉज इन गोरखपुर, हमने वहीं से पूरा ऑपरेशन किया। फिर 2020 में हमने दिल्ली में भी अपना ऑफिस रखा, और अब मैं दिल्ली और गोरखपुर दोनों जगह से काम करती हूँ। हमारी आधी टीम दिल्ली में है, आधी गोरखपुर में। जी। तो मैम एट द वेरी यंग एज यू हैव स्टार्टेड दिस, तो चैलेंजेस आए होंगे इनिशिएट करने में सब कुछ, और वो क्या ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? सबसे बड़ा चैलेंज तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट को लेके था, क्योंकि ये इतना नया मटेरियल था। हम मतलब हमें इनफॉर्मली तो इस्तेमाल करने की आदत है दूसरे की। अगर किसी का घर कच्चा है तो वो छत पे उसको रख देता है, लेकिन आप बोलो किसी को अपना पक्के घर में उसको इस्तेमाल करने को, तो वो 10 बार सोचेगा। जैसे हमें हमें हमारा पहला कस्टमर मिलने में 6 महीने लगे। जून में हमने कंपनी स्टार्ट किया, हमें पहला कस्टमर जनवरी 2019 में मिला। पर पहले से अभी तक हमारे पास 35 से ज्यादा कस्टमर है, और हमने लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट और 3 करोड़ से ज्यादा का काम किया है। तो शुरू में ज्यादा दिक्कत होती है पहले कस्टमर में, पहले किसी को कन्विंस करने में। पर एक कन्विंस होता है तो फिर आपके पास कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने को होता है, तो वो एक एग्जाम्पल हो जाता है दूसरे कस्टमर के लिए, फिर तीसरे के लिए वो दो। तो इट बिकम्स ईजी ऑफ कोर्स, बट स्टार्टिंग में डेफिनेटली चैलेंज था। इसलिए हमने स्टार्टिंग में टेस्टिंग की। अभी भी हम और जितनी टेस्टिंग हो सकती है इस मटेरियल की कराते रहते हैं, जब हमें लगता है कि कोई नई प्रॉपर्टी की टेस्टिंग करानी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को और लोगों को ज्यादा विश्वास हो इस टेक्नोलॉजी पर। अब क्योंकि हमने इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो अब क्या होता है, अब आप अगर बोलो कि मुझे मेरे घर की फॉल सीलिंग करनी है, मैं आपको 6 ऐसे प्रोजेक्ट दिखा सकती हूँ जहाँ फॉल सीलिंग हुई है, तो आपको कन्विंस करना आसान होगा। तो पहला कस्टमर डेफिनेटली, इसीलिए जो हमारे शुरू के कुछ कस्टमर्स थे, आई स्टिल वैल्यू देम अ लॉट, बिकॉज अगर उन्होंने पहले रिस्क नहीं लिया होता तो बाकी लोग उसको नहीं अपनाते डेफिनेटली। सो मैम आपने हॉस्पिटल बनाया इसी जी वे में, है ना? तो जी। वो हॉस्पिटल आपने बनाया, तो उसका उसके बारे में बताइए कि कैसे बनाया और क्या उसका तो मोटिव था? ये हॉस्पिटल एक्चुअली जब लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ मार्च में 2019 में, तो हमने भी अपना ऑपरेशन लगभग 1 महीने के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि हमें भी नहीं समझ आ रहा था कि बिना साइट पे गए हम काम कैसे करेंगे, और हमारा काम इतना फिजिकल है। तो हमने भी लॉकडाउन कर दिया, मतलब बंद कर दिया था। लेकिन फिर हमारी जो पार्टनर है सेल्को फाउंडेशन, जो बैंगलोर बेस्ड एनजीओ है जो सोलर का काम करती है, उन्होंने हमको रिक्वेस्ट की कि अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो वो अपने दूसरे पार्टनर के लिए, विच इज डॉक्टर फॉर यू, जो इस समय इंडिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हेल्थ केयर एनजीओ है, जो रिलीफ वर्क पे काम कर रहा है कोविड में, वो पटना में अपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के ऊपर सिर्फ एक कोविड सेंटर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड, और इसमें भी क्योंकि हम उस समय गोरखपुर में हमारा स्टैब्लिश था, तो पटना से पास करता है, तो हमने कहा कि ठीक है हम बना सकते हैं। और फिर अप्रैल में हमने प्लानिंग की, और मई जून 2 महीने में हमने पटना जाके मेरी टीम ने वहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन किया। मैं 1 महीने थी वहाँ, पूरी टीम 2 महीने, और हमने वहाँ रुक के
पूरा कंस्ट्रक्शन किया, जिसके लिए हमें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी, या मटेरियल के लिए कुछ मटेरियल के लिए फैक्ट्री से परमिशन लेनी पड़ी, गवर्नमेंट से, डीएम से, नोएडा में, महाराष्ट्र में, अपने लिए गोरखपुर में, ताकि हर मटेरियल अलग अलग जगह से आ सके हमारे मटेरियल के अलावा, जैसे टाइल्स है, पेंट है, सब कुछ। और फिर लेकिन सबने काफी सपोर्ट किया क्योंकि हॉस्पिटल बन रहा था, और इस तरीके से हमने वो पूरा हॉस्पिटल 2 महीने में बना के तैयार किया। उस समय भी कोविड में इस्तेमाल हुआ, फिर रेगुलर हॉस्पिटल की तरह इस्तेमाल हुआ एंड ऑफ द ईयर, जब कोविड थोड़ा कम हो गया। और अब इस साल, इस समय सेकेंड वेव में 100% कोविड पेशेंट से ऑक्यूपाइड है, और वो पूरा चल रहा है वहाँ पे। 50 to 75 बेड कैपेसिटी है उस हॉस्पिटल की। तो मैम इसमें में आपको क्या लगता है कि हमें और भी हॉस्पिटल्स इंडिया में बनाना चाहिए, बिकॉज एज यू नो कि ऐसे क्राइसिस में तो हमें इसी वे में बनाना चाहिए और हॉस्पिटल्स, और हाउ वी शुड गो? और देखिए, उन्होंने हमें इसलिए बोला क्योंकि एक तो ये कि जल्दी बन सकता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन सीमेंट से, कंक्रीट से करते हो, तो कंक्रीट को आपको सिर्फ सेट होने के लिए 21 दिन छोड़ना पड़ता है। तो आपने अगर एक बार छत का लिंटर डाला, तो आपको 21 दिन, 28 दिन तो आपका वैसे ही काम रुक जाएगा और कुछ नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली समय सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय। हमारे पास 6 महीने नहीं है हॉस्पिटल बनाने के लिए। और दूसरा ये कि जब हम ये फास्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर का जो लोड होता है, वो 1/3 होता है कंक्रीट के स्ट्रक्चर के डेड लोड से। तो इसलिए भी जो फाउंडेशन हम बनाते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और जल्दी तैयार होता है। और थर्डली, जो स्ट्रक्चर होता है ये ज्यादा थर्मली इंसुलेटेड, जैसे मैंने कहा, जो स्ट्रॉ की खासियत है कि उसके अंदर आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। क्योंकि अभी आप ऐसे देखिए, आप देख रहे होंगे कई स्पोर्ट्स स्टेडियम, कहीं ओपन एरिया में लोग आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं। अब वो सेंटर्स पे क्या है कि वो जल्दी बन तो जा रहे हैं टेंट से या मेटल शीट से, लेकिन वो जितनी धूप और जितना हीट ट्रैप करता है, तो फिर पेशेंट के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है उसके अंदर रह के काम करना। और अभी हम लोग फिलहाल 1-2 स्टेट से हमारी बात भी चल रही है, एक बार फाइनल होगा तो हम डिस्क्लोज करेंगे, जहाँ पे हमको रिक्वेस्ट की गई है कि हम लगभग 200 बेड का कोविड सेंटर एक और हम बना के दें 1 महीने के अंदर। तो अभी उसकी हमारी प्लानिंग चल रही है। तो मैम जैसे आपने जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें विलेजर्स को क्या फायदा होता है, या विलेजर्स इसमें इस प्रोजेक्ट में कैसे काम कर सकते हैं? तो हमारे मॉडल में देखिए, जैसे हमारा जो रॉ मटेरियल है वही एग्रीकल्चर से आता है। हमारा रॉ मटेरियल किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, वो फील्ड से आता है और फिर वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो चाहे वो बगास हो, पैडी हो, वीट हो, कोई भी ये जो बाई प्रोडक्ट है, जो हमारे लिए हमारा रॉ मटेरियल है, वो हमें किसान से खरीदना होता है। तो हमारा काम जितना भी ज्यादा इस्तेमाल होगा या जितना आगे बढ़ेगा, उतना ज्यादा किसान का वो रॉ मटेरियल की खपत होगी और उसका वो रॉ मटेरियल वो बेच सकता है। तो पहले जिस चीज का उसको कोई दाम नहीं मिलता था, उसको अपने जेब से पैसे लगा के अपना खेत साफ करना पड़ता था। अब वो किसान अपना खेत साफ करके अगर ये स्ट्रॉ हमें बेचता है, तो वो 2 से 2.5 रुपए पर केजी, यानी कि अगर 1 एकड़ एक किसान के पास जमीन है, तो 1 एकड़ में लगभग 2 टन स्ट्रॉ निकलता है। यानी कि वो आराम से 1 एकड़ से 4-4.5 हजार रुपए कमा सकता है हर सीजन में, सिर्फ इस स्टॉक को बेच के। और किसी भी छोटे किसान के पास भी 2 से 3 एकड़ जमीन होती है। तो यानी कि आप 8 से 10 हजार रुपए हर सीजन में, यानी साल में अगर 2 सीजन है, आप 2 बार खेती करते हो, तो आप 20 हजार रुपए और कमा सकते हो। और अगर आप छोटे किसान को देखो, तो जितना उसका खर्चा आता है आजकल फार्मिंग करने में, उसको साल में बचता इतना ही है, मुश्किल से 20-25 हजार। तो एक तरीके से हम उसकी जितनी इनकम है, हम उसमें एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, 30 से 35%, अगर वो अपना ये स्ट्रॉ हमें बेचे और हम इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके इसका मटेरियल बना सकें। तो इसमें फार्मर को भी फायदा, और जितना ज्यादा कस्टमर, यानी कि जो फाइनली हमारा ये मटेरियल यूज करता है, हमें जितना ज्यादा सपोर्ट कस्टमर का, आर्किटेक्ट का, इंटीरियर डिजाइनर का होगा जो इस मटेरियल को इस्तेमाल करे, उतना ही वैल्यू हम फार्मर को दे सकते हैं कि जितना वो यूज करेंगे उतना हम और खरीद पाएंगे फार्मर से ये मटेरियल। तो उनको वैल्यू और उनकी इनकम, तो डेफिनेटली हर कोई उनकी इनकम में सपोर्ट कर सकता है। जो अपने घर के लिए एक टेबल बनाने के वक्त सोचे कि अगर मैं रेगुलर लकड़ी के बजाय मैं अगर इससे टेबल बनाता हूँ या इससे मैं अपनी दीवार या सीलिंग बनाता हूँ, तो वो इंसान भी उस फार्मर की इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि तभी हम उससे वो रॉ मटेरियल खरीद पा रहे हैं। तो डेफिनेटली काफी पोटेंशियल है इसमें। सो मैम ये जो आइडिया है
और जिससे फार्मर्स को बेनिफिट भी हो सकता है और जो ये पोल्यूशन है ये भी कंट्रोल हो सकता है। तो ये ऑल ओवर द अक्रॉस द कंट्री हम कैसे इसको फार्मर्स तक, स्पेशली फार्मर्स तक हम कैसे ये आइडिया बता सकते हैं? तो कैसे स्प्रेड हो सकता है ये? हम लोग अभी क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी शुरू में इस साल हम एक और पायलट फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हैं। भरसक या तो यूपी या पंजाब में हम वो फैक्ट्री लगाएंगे और उस फैक्ट्री को हम एक मॉडल फैक्ट्री की तरह दिखाएंगे, जिसके बाद हम किसान मतलब हम ये मॉडल डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे कि किसान कैसे रेगुलर हमें स्ट्रॉ दे सकता है, उससे हम उसको क्या वैल्यू दे रहे हैं, क्या प्राइस दे रहे हैं। हम ऐसे पार्टनर ढूंढेंगे जो फैक्ट्री लगाने में हमारे साथ मदद करें, ताकि उनका आधा इन्वेस्टमेंट और आधा हमारा हो। तो पार्टनरशिप में ज़्यादा जल्दी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग पाएँगी, चाहे हम अगर अकेले लगाने की कोशिश करें। और फिर हम साथ ही में गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं अलग-अलग स्टेट में कि वो अपने लोकल लेवल पे या मान लीजिए गवर्नमेंट बिल्डिंग में इस मटेरियल का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, ताकि जो लोकल कस्टमर है, जो रेगुलर सिटीज़न है, वो उसको लगे कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपने ऑफिस का फर्नीचर इससे बनवा रही है, तो हम भी अपना फर्नीचर इससे बना सकते हैं। क्योंकि बिज़नेस है तो तीनों चीज़ें, हम उनसे रॉ मटेरियल की सप्लाई तभी ले सकते हैं जब डिमांड होगा और डिमांड हुँ, तभी होगा जब इसका मार्केट क्रिएट हो। तो इसलिए हमें तीनों चीज़ के साथ में ध्यान देना है कि हम मार्केट भी क्रिएट करें, फार्मर से समय पे सही पेमेंट करके उनसे स्ट्रॉ कलेक्ट कर सकें और ऐसे लोग के साथ जुड़े जो ज़्यादा जल्दी ऐसी फैक्ट्रियाँ अलग-अलग ज्योग्राफी में कर्नाटका, यूपी, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जहाँ भी ये रॉ मतलब यानी कि पैडी, व्हीट या शुगरकेन ये 3 रॉ मटेरियल ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे हम इसकी फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें। तो हमारी कोशिश है कि अगले 3 साल में हम कम से कम हम 3 फैक्ट्रियाँ इसकी लगा के डेमोन्स्ट्रेट कर सकें और होपफुली उसके बाद बाकी लोग और फैक्ट्रियाँ पार्टनरशिप में लगा के उसको स्केल कर सकते हैं। सो मैम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए जो आपने कुछ सोचा हो? अपकमिंग सॉरी? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए प्लीज़। जी। अभी हम लोग जैसे मैंने बताया हम अभी इस साल तो एटलीस्ट हम 2 प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हैं। एक तो हेल्थ केयर में हम एक पूरा हॉस्पिटल बनाने का काम, दूसरा ऐसे पोर्टेबल पार्टीशन बनाने का काम कि अगर कोई एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है, जहाँ पहले से पेशेंट जा रहे हैं, वहाँ अगर मान लीजिए उनका बड़ा-सा जनरल वार्ड है, तो वो तुरंत ये पोर्टेबल पार्टीशन लगा के एक बड़े से वार्ड को छोटे-छोटे आइसोलेशन रूम में कन्वर्ट कर सकें। तो ये 2 प्रोडक्ट हेल्थ केयर में और तीसरा हम वर्क फ्रॉम होम के लिए, जैसे जो लोग घर से काम करते हैं, तो कैसे हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाएँ जो घर में अकूस्टिक यानी कि साउंड इंसुलेशन को बेटर करे, ताकि जैसे होता है ना हम ज़ूम पे बात करते हैं तो आवाज़ कभी साफ नहीं आती है या एको होता है या 2 लोग एक रूम में बात कर रहे होते हैं तो डिस्टर्बेंस होती है। तो हुँ, हुँ। उसको एफिशिएंट और बेटर करने के लिए हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अभी हम वर्क फ्रॉम होम और हेल्थ केयर इन 2 चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं इस साल। ग्रेट। सो मैम हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ कुछ एडवाइस दीजिए अपनी तरफ से। नहीं मैं बस यही कहूँगी कि अब जब भी कुछ भी कंज़्यूम करें, कोई भी चीज़, चाहे वो कोई खाने की चीज़ हो, बिल्डिंग में आपके घर में क्या लगे, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो मटीरियल बन कैसे रहा है। क्योंकि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का ये सोचें कि वो कैसे बन रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो हम हर कोई कॉन्शियस डिसीजन ले सकता है कि हम कैसे बेटर चॉइस एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कोई प्रोडक्ट जैसे हम लोग प्लास्टिक स्ट्रॉ की बात करते हैं बहुत छोटी-सी चीज़ है, पर अगर आप सोच के अगर प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह दूसरा स्ट्रॉ यूज़ करते हो, जितने लोग रोज़ स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और उससे क्या होगा जो छोटा बिज़नेस जो बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉ बना रहा है, हुँ, उसकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि एज़ अ कंज्यूमर वी हैव लॉट ऑफ पावर आई बिलीव। हुँ, हुँ, एज़ एन इंडिविजुअल वी फील गुड इनफ बट आई थिंक वी डू। तो अगर हम अपनी चॉइस ज़्यादा कॉन्शियस रखें, अगर हम खुद बोले एज़ अ कस्टमर कि मुझे ज़्यादा सस्टेनेबल या इको फ्रेंडली चीज़ें चाहिए, तो डेफिनिटली वैसे बिज़नेसेस ग्रो करेंगे जो वैसे प्रोडक्ट बनाते हैं और जो नहीं भी बनाता है, उस पे भी प्रेशर होगा कि वो प्लास्टिक के बजाय इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए क्योंकि बिज़नेस में जो कस्टमर चाहेगा आपको वही सप्लाई करना पड़ेगा। So as customers, we are at a very good position to demand better things out of businesses, to demand good ethical products. So I think we should consume ethical products and then put that pressure out there for businesses to act accordingly. So that's what I like to share. Thank you so much, ma'am, for your time and the information, the knowledge, everything which you gave us through this interview.
Thank you very much. And we hope कि all over India ये idea spread हो जाए and we can use this idea to save our country and environment. So thank you very much for this.